Today we will revise the poem Wind. Second poem of your book, textbook, Behind Wind, written by Subramanya Bharati. First, this poem was written in Tamil language, and then it was translated into English by A.K. Ramanujan. ठीक है? A.K. Ramanujan is a South Indian writer and poet. This poem also a symbolic poem. Yesterday we have revised poem The Road Not Taken, written by Robert Frost, and like as this poem also a symbolic poem because here wind symbolizes the difficulties facing by human beings in their lives. Wind, the poet says that you should be strong at heart, then you can face challenges coming in your life. So the poet says the wind, here wind stands for wind god. सुनते हो ना, वायु देवता, पवन देवता, ठीक है? Here wind stands for the wind god. Now let's read the poem. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? Poet wants to say that we should be friends with the wind because wind creates so many difficulties in our lives. So if we be friend with the wind, then there will be no difficulties in our lives. Let's read the poem now. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. In the very first stanza, the poet says to the wind to come softly. The poet prays. The poet urges. अर्ज का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना. प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना. रिक्वेस्ट कर रहा है. The poet requests, the poet urges, the poet prays the wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. The poet says to the wind not to break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. The books which are kept on the shelf, don't throw them down. The poet says to the wind not to throw the books from the shelf down. Clear? And not to scatter the papers. Suppose so many papers have been kept on this bench and there is a wind, strong wind, then the papers will be scattered. So the poet says the wind not to scatter the papers. You look what you did. There. Poet says to the wind, there, देखो. What did you? तुमने क्या कर दिया? You threw them all down. तुमने उन सबको नीचे फेंक दिया है. You tore the pages of the books. The poet says to the wind that you has क्या? Torn the pages of the books. You brought rain again. फिर से बारिश आ गई है. बारिश आने का, रेन आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? विंड. जब विंड होगी और उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होएगा, विदरिंग बहुत ज़्यादा होएगी, तो क्या होएगा? रेन आएगी. तुम फिर से रेन ले आए हो अपने साथ. रेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से मतलब होता है. ठीक है? You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम बहुत चालाक हो. Poet says to the wind that you are very clever. और तुम जो weaklings होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर चीज़ होती हैं, जो कमज़ोर ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका तुम बड़ा मजाक उड़ाती हो. You make
fun of the weaklings. Your frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. Here crumbling stands for the weaklings. weaklings का मतलब क्या है? कमजोर. चाहे वो कमजोर वुड है यानी जंगल है, ठीक है, बॉडीज हैं, लाइव्स हैं, हार्ट्स हैं, हाउसेज हैं, डोर्स हैं एंड राफ्टर्स. राफ्टर्स क्या होता है? व्हाट इज इट मीन बाय राफ्टर? दैट इज कॉल्ड राफ्टर. आपको पता है गांव में कोई पुराना घर होगा तो उसमें देखना इसको आप क्या बोलते हो? सैतीर बोलते हो. देखते ना, वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है. अगर वो कमजोर होगा और भूकंप आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा, वो क्रश हो जाएगा ना. तो इसलिए कहते हैं कि आप क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग हाउसेज, यानी जो कमजोर हाउसेज हैं, कमजोर डोर्स हैं, वीकलिंग जो वीक डोर्स हैं, उन सब का तुम मजाक उड़ाते हो, उन सबको तुम ब्रेक कर देती हो, उनको जो तोड़ देती हो. अब यहाँ तक जो है ना पॉइंट जो है ना इस स्टेंजा तक पोइट कंप्लेन्स द विंड. पोइट क्या करते हैं? कंप्लेन द विंड. विंड से कंप्लेन कर रहे होते हैं, देखो तुमने क्या कर दिया है. व्हाट हैव यू डन? नाउ विद द नेक्स्ट स्टेंजा, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विंड गॉड यानी विंड गॉड जो है ना विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो पॉइंट कहता है कि द विंड गॉड जो है ना, जो कमजोर चीजें होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग चीजों से अलग कर देते हैं. विनो का मतलब होता है पिछोड़ना. विनो का मतलब क्या होता है? पिछोड़ना, ठीक है. क्रश का मतलब होता है कुचलना. क्रश मीन्स कुचलना. जैसे आप लोग अब तो क्या होगा, थ्रेसिंग सिस्टम आ गया है, ठीक है, कंबाइन सिस्टम आ गया है, थ्रेसिंग सिस्टम आ गया है. पहले क्या था? चने हैं, जैसे सरसों है, गेहूं है, पहले क्या करते थे? पहले उनको क्रश करते थे. अपने जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, उनसे पूछना, ठीक है. उनको पता होगा कि पहले जो है ना सरसों है, मस्टर्ड है, ग्राम है, उसको आप कैसे निकालते थे, उसको आप कैसे निकालते थे. तो आपको बताएंगे कि उनको क्या करते थे कि उनको ले कर देते थे जमीन के ऊपर, और उनके ऊपर से जो है एक बहुत हैवी जो चीज़ थी राउंड राउंड वो घुमाते थे बैलों की हेल्प से या ट्रैक्टर की हेल्प से. फिर उसको वो क्रश हो जाते थे और उसके बाद उनको विनो करते थे. विनो करने के बाद जो ग्रेन होता था वो अलग हो जाता था और जो भूसा होता था वो अलग हो जाता था, ठीक है. दैट इज कॉल्ड विनोइंग. दैट्स क्लियर? ओके. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. ही, देखो ही का यहाँ पर एच कैपिटल है. वाई एच इज कैपिटल हियर? बिकॉज ही वर्ड ही प्रोनाउंस स्टैंड्स हियर फॉर विंड गॉड. विंड गॉड के लिए स्टैंड करता है यही. लिख लो, चाहे आ सकता है स्टैंड आपका, ठीक है. यू कैन बी आस्क्ड दैट हियर ही रेफर्स फॉर, किसके लिए रेफर करता है ये, किसके लिए स्टैंड करता है ये यहाँ पर? विंड गॉड के लिए. इज दैट क्लियर? ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. फिर पोइट खुद ही कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि तुम उनको कहते हो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है. वीकलिंग्स को परेशान मत करो, ठीक है. तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा. हमें अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि ठीक है सामने वाला अगर नहीं मानता है, आपकी बातों को नहीं सुनता, तुम खुद ही अपने आप को चेंज कर लो, तुम खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाओ. कहते हैं ना, तुम खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाओ. तो इसलिए पोइट कहते हैं, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो इसलिए आओ हम खुद ही होम्स स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं. इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि विंड आए तो उसको कोई क्रश ना कर सके. लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली. हमें अपने डोर जो है ना, फर्मली का मतलब क्या है? मजबूती से बनाने चाहिए, मजबूत बना लेने चाहिए. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है. वी शुड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मतलब क्या है? स्टेडफास्ट का मतलब क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग है. हमें अपने बॉडी और अपने हार्ट को
दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हार्ट का मतलब क्या है, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बॉडी का मतलब क्या है यहाँ पर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड बी डिटरमाइंड विद आवर बॉडी एंड हार्ट। ठीक है, हमने अपनी बॉडी और हार्ट दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। डू दिस एंड द wind will be friends with us. If you can do all this, if your body and mind and your emotions and your heart all will be strong, then the wind will be friend with us. तो wind हमें कैसी लगेगी कि हमारी फ्रेंड है, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। समझ आया? आपको दोस्त कौन लगता है, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वही आपको दोस्त लगता है ना। ठीक है, क्लियर? तो जब हमारे को कोई चीज़ नुकसान ही नहीं पहुंचाएगी तो हमारे को कैसे लगेगी, वो फ्रेंड लगेगी। तो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो ऐसा अगर आप करोगे, इफ यू विल बी स्ट्रॉन्ग एट योर हार्ट with your body, then the wind will be friend. The wind blows out weak fires. That is the important stanza. The wind blows out weak fires. You can imagine yourself, if the fire is weak in your kitchen and if you turn on the fan, then it will be blows out. blow हो जाएगी ना, वो बुझ जाएगी। और अगर वही जो फायर है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप फैन ऑन करोगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा फ्लोरिश हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो फैल जाएगी। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो विंड जो है ना वो वीक फायर्स को ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है। द ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, जो फायर स्ट्रॉन्ग होती हैं उनको वो क्या कर देती है, रोर एंड फ्लोरिश। रोर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। रोर मीन्स दहाड़ना, टू मेक हाई साउंड, टू मेक हाई साउंड। रोर का मतलब ये है। और फ्लोरिश का मतलब क्या है, फलना फूलना। फ्लोरिश का मतलब क्या है, फलना फूलना, प्रोग्रेस करना। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अल्टीमेटली द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज गुड। We praise him every day, and the poet says that we praise him every day. him का मतलब यहाँ पर क्या है, wind god। ठीक है, तो हमें हर रोज जो है ना wind god को प्रेज करना चाहिए। ठीक है, wind god का प्रेज करना चाहिए और हमें उनसे ये भी प्रे करना चाहिए। फर्स्ट इन द फर्स्ट stanza he prays to the wind that it should not do all the activities, not to throw the books from the shelf, not to scatter the papers. But at last he says that we should make ourselves strong so that we can face all the challenges coming to our lives, coming to ours. What the difficulties? Here wind, strong wind stands for the problems that we face in our lives. And if we will be strong at heart and with our body, then we can face those challenges. That is definite. Challenges will come to us. That is the definite. Every person has the difficulties in her or his life. But if we will be strong with mind, heart and body, then we can face them nicely. And we can't feel then that we are facing these challenges, we are facing these difficulties, and we are not able to face those challenges and difficulties. हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सामने कोई डिफिकल्टी आ भी रही है अगर हम इमोशंस से, वी आर नॉट सेंसिटिव, वी आर नॉट वीक। देखो हमारे को फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ठीक है, हम फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्ट्रॉन्ग होएंगे तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी, हम उसको फेस करेंगे तो आराम से फेस कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम आराम से फेस कर सकते हैं तो हमें क्या लगेगा, वो हमें अपने फ्रेंड की तरह लगेगा वो। ठीक है, दैट्स वाई द पोएट सेज दैट वी शुड मेक द विंड आवर फ्रेंड। ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे,
तभी वो पोइट कहता है कि हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। चैलेंजेस डिफिकल्टीज तो हर किसी की लाइफ में आनी ही आनी है, दैट इज नेचुरल, क्लियर। बट इफ वी मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग देन नेचुरली वी विल फेस देम हैप्पीली। ओके, Yes, ma'am. is that clear all? Yes, ma'am. Any doubt?